Good morning, students. Hello, how are you? So, students, I know that you must be remember the homework of previous video, that exercise 4A. So, right now, I'm just going to give you the solution of those questions. Okay, so I had given question number 1 and question number 2. Okay, so let's go. Here is the solution of question number 1, and it is like this. Evaluate 8 cubes. So what we have to do, we just have to multiply 8 into 8 into 8. That becomes 512. Similarly, when we have 15 cube, we have to multiply 15 into 15 into 15, and then answer becomes 3375. Clear? Similarly, you have to do this 21 cube and 60 cube, and I'm sure that you people have already done all these four questions. Okay, now moving ahead. Similarly, in the question number second, evaluate 1.2 cube. So in order to solve 1.2 cube, what we can do, we can simply multiply 1.2 into 1.2 into 1.2 three times. Okay, we can simply multiply it three times, or what else we can do, we can convert this decimal into fraction as like this 12 by 10. Clear? So when we convert this 12 by 10 as a fraction, so we'll have to do the individual cubes ना, cube of 12 and cube of 10. तो जब हम लोग 12 का क्यूब किए तो 12 इंटू 12 इंटू 12 लिखा हमने, विच अगेन बिकम्स 1728. एंड सिमिलरली जब हमने 10 का क्यूब किया तो वी राइट 10 इंटू 10 इंटू 10 एंड बिकम्स 1000. तो जो ओवरऑल जो फाइनल आंसर है, so student, that final answer is 1.728. I hope that you can see it. 1.728. And in the same way, you have to check the solution of question second. You have to do the question number 4.8 from home. Now when we have to do the question for 0.05 cube, what we do, we should make it 5 by 100, and this further be written as 5 by 100 and its cube. Is it? Yes, it is. And then, so this 5 by 100 will be written as 5 cube upon 100 cube, and 5 cube further becomes 125, and 100 cube becomes 1 into 10 to power 6, मीन्स ये 6 टाइम्स जो है 0 आ जाएगा, एंड फाइनल आंसर बन जाएगा 0.000125. सो बच्चों ये सारे तो आपने ऑलरेडी कर रखे होंगे, बट मुझे एक चीज़ आपको न्यू सिखानी है, एंड आई विल टीच यू दिस वे. लुक व्हाट हैपेंस, there is always another way of finding the cubes of decimals. Okay, and how that is to convert them into fractions and then find the cubes of numerator and the denominator individually. Like we have to find the cubes of numerator and denominator individually. Let's see how. What we can do, we can do it this way. Evaluate 1.2 cube. So जैसे मैंने भी बताया था ना कि 1.2 को आप क्या लिखोगे, 12 by 10 लिखोगे. फिर मैंने कहा था कि आप 12 का इंडिविजुअल निकालो, 10 का इंडिविजुअल निकालो. एंड देयर इज अ बेटर वे. क्या बेटर वे है, आप इसको कैंसिल आउट कर लो. व्हेन यू गो फॉर कैंसलिंग इट 12 by 10, तो देखो होता क्या है कि दिस इज 2 5 ज़ा 10. क्लियर? और दिस इज 2 6 ज़ा 12. तो 2 से 5 टाइम्स में 10 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से जो है 12 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. तो एट लास्ट वी गेट 6 by 5 का क्यूब. नाउ अब कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, बिकॉज अब ये 12 डबल डिजिट का था, अब ये सिंगल डिजिट का हो गया. तो 6 का क्यूब इज़ 216 एंड 5 का क्यूब इज़ 125, एंड सेम पैटर्न हैज़ बीन फॉलोड एवरीवेयर. अब देखो सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है. मैंने क्या किया, 35 by 10 लिखा 3.5 को,
यानी ये फर्दर डिवाइड होके 7 बाई क्या हो गया 2 हो गया। डिवाइड किससे हुआ एक बार फिर से देखो मेरे साथ। अगर ये 35/10 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो 5 टू ज़ा कितना होता है 10 और 5 7 ज़ा कितना होता है 35। तो एट लास्ट आपको क्या मिला 7/2 और पावर तो 3 है ही है, पावर तो क्यूब है ही है। सो 7/2 सॉरी हाँ 7/2 का क्यूब। तो 7/2 का क्यूब मतलब 7 का क्यूब यानी कि 343 एंड 2 का क्यूब यानी 8। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें थी करने के लिए। जो अब आपका जो नेक्स्ट आ रहा है बच्चों वो आ रहा है क्वेश्चन 3, जिसमें कि इवेल्युएट करना है और इसी पैटर्न से इवेल्युएशन है। ठीक है, जैसे कि 4/7 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब इंडिविजुअल करेंगे, 7 का क्यूब इंडिविजुअल करेंगे, आंसर आएगा 64/343। क्लियर। सिमिलरली 10 का क्यूब अपॉन 11 का क्यूब, 10 का क्यूब अपॉन 11 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000 एंड 11 का क्यूब होता है 1331। क्लियर। सिमिलरली 1/15 का क्यूब है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना स्टूडेंट्स, वो याद रखने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ मैं होमवर्क लिख रहा हूँ ऐसा नहीं है कि केवल वही होमवर्क है। ठीक है ना। द थिंग इज़ कि आपको इस पूरे के पूरे PDF का जो मैं आपको अभी इस ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस पूरे के पूरे वीडियो को कि उसका मैं PDF अभी अपलोड कर दूंगा और इसके सारे के सारे सेक्शन को आपको नोट करना है अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, जो होमवर्क वाला पोर्शन है उसको भी करना है, जो ये मैंने सॉल्व करके रखा है इसको भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब देखो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन आता है 1/3/10, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, देखो बोलने का तरीका क्या है पहले से सीखो। 1/3/10 लिखा है, ठीक है, तो जो नंबर बीच में लिखा होता है यानी कि 3 और 10 के बिल्कुल लेफ्ट साइड में लिखा होता है, ये एक बात समझना, ये लाइन 3/10, ठीक, इसमें और 13/10 में बच्चा देखो डिफरेंस है ना। ये 13/10 है, ये 13/10 है, राइट, और ये क्या है 1/3/10 है। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये 1 या जो भी नंबर है इसको सबसे पहले बोलेंगे होल के साथ, 1 होल 2 होल 3 होल जो भी नंबर लिखा होगा। फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 3, ठीक, और फिर आएगा 10। क्लियर। तो अब यहाँ देखो समझने की बात है, मैंने अभी आपसे कहा कि 1/3/10 इज डिफरेंट देन 13/10। पता देखो मैंने क्यों कहा, बिकॉज इसको हम लोग 13 बोलेंगे, इसको हम लोग 1/3/10 बोलेंगे, डिफरेंस तो है ही है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। ठीक है, लेकिन जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये फर्दर बनता यही है, बोलने में डिफरेंस है बट बनता यही है। कैसे, 10 1 10 + 3 13/10 हो जाएगा। यही चीज़ है, 13/10 का क्यूब करेंगे तो 13 क्यूब अपॉन 10 क्यूब है, 13 क्यूब फर्दर क्या बन जाएगा 2197 अपॉन 1000। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाने का तरीका आपने प्रीवियस क्लास में सीखा ही होगा, क्लास 7th में। क्या तरीका होता है, तरीका ये होता है कि जितने डिजिट्स ऑफ ज़ीरो हैं गिन लो, कितने बार ज़ीरोज़ हैं 3 टाइम्स ज़ीरो हैं, बस राइट हैंड साइड से काउंटिंग करोगे 1 2 3, बस राइट हैंड साइड से काउंटिंग करने के बाद बीच में ज़ीरो लगा दोगे। देखो मैंने ये किया है ना, 1 2 3 और फिर ज़ीरो लगा दिया। क्लियर हो गया बच्चों। चलो नेक्स्ट, 5/2/3 है। अब 5/2/3 में क्या करना है, कुछ नहीं, 5 3 15 और 2 17। मैंने सिखाया था ना, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे यानी डिनोमिनेटर से करेंगे और न्यूमरेटर को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो 17/3 बिकम 17 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। क्लियर। एंड 17 का क्यूब क्या होता है 4913 एंड 3 का क्यूब क्या होता है 27। सिमिलरली द नेक्स्ट इज 11/19 cube. So 11 cube is 1331 and 19 cube is 6859, and that's the final answer. Now moving ahead. So moving ahead, we have got a different kind of question, and मैंने ऐसा देखा है कि among all the students and or most of the students ऐसा होता है कि when
द स्टूडेंट सी क्वेश्चंस इन वर्ड्स, यानी कि ऐसे जब क्वेश्चन वर्ड में लिखा होता है तो स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है, कि सर इसको कैसे करना है या कैसे नहीं करना है. सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द मेन वर्ड्स. ठीक है, मेन वर्ड्स क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है. एंड अगर वो परफेक्ट क्यूब है, इन केस ऑफ अ परफेक्ट क्यूब, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर. अगर परफेक्ट क्यूब है तो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, आपको ये बताना है. सो स्टूडेंट्स ये ध्यान देना कि जब कभी भी पूछेगा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, या किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, सो द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला काम आपको करना है स्टूडेंट्स, वो यही करना है, यू हैव टू टेक दिस प्राइम फैक्टराइजेशन. गिवन नंबर का, गिवन नंबर यहाँ क्या है, 125 है ना. ठीक है, तो 125 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. कैन यू सी दिस, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5. आई होप इट्स डन. चलो, बस इसी चीज़ को हमने लिखना है यहाँ पे. 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, जो फर्दर लिखा जा सकता है कैसे, 5 की पावर 3. तो अगर हम इस नंबर को पावर 3 में लिख सकते हैं तो फिर वी आर करेक्ट. अब इसका हम और इलेबोरेट करते हैं. देखो बच्चों ध्यान देना, वेट अ मिनट. यस, ये जो सेंटेंस लिखा है ना उसको पढ़ो ध्यान से. सिंस वी कैन मेक होगा यहाँ पे, सॉरी, वी कैन मेक द ट्रिपलेट ऑफ सेम नंबर and no fact is left, therefore 125 is a perfect cube and is a cube of 5. So I repeat that we can have the triplet of same number. Triplet means group of 3. ये माइंड में हमेशा याद रखना है कि since twin means group of 2, since twin means या pair means group of 2. पेयर का मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैव पेयर ऑफ शूज मीन्स आपके पास दो शूज हैं. व्हेन यू हैव पेयर ऑफ टॉयज मीन्स आपके पास दो दो टॉय हैं. पेयर ऑफ डॉल यानी आपके पास दो डॉल हैं. या पेयर ऑफ बैट, आप क्रिकेट खेलते हो तो यू हैव, इफ़ यू हैव अ पेयर ऑफ बैट तो आप कहोगे कि मेरे पास दो बैट है. अगर आप मतलब लेदर बॉल से खेलते हो, ड्यूज से खेलते हो तो आपके पास पैड होगा. ठीक है, आपके पास ग्लव्स होंगे, तो यू विल से कि आई हैव अ पेयर ऑफ पैड. क्लियर हो गया ना. चलो, सो उसी तरह से ट्रिपलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3. पेयर मीन्स ग्रुप ऑफ 2, ट्रिपलेट मीन्स ग्रुप ऑफ 3. सो 3 का ग्रुप बनना चाहिए, है ना. वी कैन हैव द, सिंस वी कैन हैव द ट्रिपलेट ऑफ सेम नंबर एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट, देयरफॉर 125 इज अ परफेक्ट क्यूब. मतलब ये है बच्चों, एक सीधी सीधी बात समझना. गिवन नंबर को हमने प्राइम फैक्टर में लिखना है, ठीक, ये करके, और ऐसा करने के बाद क्या कोई ऐसा भी फैक्टर है जो कि बचा हुआ है. आप कहोगे नहीं सर, 125 का हमने क्या किया, 3 का ग्रुप बना दिया, ट्रिपलेट बना दिया. ट्रिपलेट मीन्स 3 का ग्रुप बना दिया, कोई फैक्टर बचा नहीं. और कोई फैक्टर नहीं बचा तो हमारा जो गिवन नंबर 125 है वो परफेक्ट क्यूब है. क्लियर. और सेम चीज़ देखो यहाँ पे ये हो रहा है कि नो फैक्टर इज लेफ्ट कह रहा है, और कह रहा है कि गिवन, और किसका क्यूब अच्छा ये बता दो, क्योंकि इसको लोग 5 के क्यूब के टर्म्स में लिख पा रहे हैं तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा. अभी और क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा, डोंट गेट पैनिक. ठीक, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ 243. सो जब 243 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपके लिए कर रखा है राइट हैंड साइड में. तो नाउ यू कैन सी कि दिस 243 कैन फर्दर बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितनी टाइम्स है. आप कहोगे सर ये तो 1 2 3 4 5 टाइम्स है. क्लियर स्टूडेंट्स. 5 टाइम्स में से हमने ट्रिपलेट बनाना शुरू किया, यानी 3 का पेयर बनाना शुरू किया. तो देखो ये वाला जो 3 है इसका तो हमने पेयर बना दिया, बट ये 2 टाइम्स जो 3 है वो एक्स्ट्रा बच गया. जो 2 टाइम्स 3 है वो एक्स्ट्रा बच जाएगा. एंड here we see that one triplet of 3 is formed, but we are left with 2 extra, factors.
सो दैट इज द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर कि 3 का ट्रिपलेट तो बन गया, 3 का ट्रिपलेट तो बन गया, बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा फैक्टर बच गया, ये 2 एक्स्ट्रा फैक्टर, ठीक है। और जब एक्स्ट्रा फैक्टर बच जाता है तो वी कैन नॉट कॉल इट अ परफेक्ट क्यूब। जब कभी भी एक्स्ट्रा फैक्टर बचेगा तो हम लोग उसको परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे, जैसे देखो इस केस में ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सिमिलरली 9261 है, और आई हैव डन द सेम थिंग। क्या मैंने किया यहाँ पे, मैंने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, क्लियर। मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आई ट्राई टू मेक ट्रिपलेट्स। तो ये पता चला कि 3 जो है का ट्रिपलेट बन गया, यानी 3 के ग्रुप में आ गया, और 7 भी जो है ट्रिपलेट बन गया, यानी कि 3 के ग्रुप्स में आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि 3 इंटू 7 का ग्रुप बना दो, फिर इस 3 इंटू 7 का ग्रुप बना दो, और इस 3 इंटू 7 का ग्रुप बना दो। तो इससे क्या हुआ कि 3 7 ज़ा 3 7 ज़ा एंड 3 7 ज़ा फर्दर बिकम्स 21 21 एंड 21, यानी ये किसका क्यूब है, 21 का क्यूब है। और अगर ये 21 का क्यूब है, सो नाउ यू कैन से कि जब हम इस नंबर को प्रॉपर इनके फैक्टर्स के रूप में और ट्रिपलेट्स बना के लिख पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। और किसका क्यूब कहलाएगा, जिस नंबर का पावर 3 लगा हुआ है। किस नंबर का पावर 3 लगा हुआ है, 21 का पावर 3 है। ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर का पावर 3 है, जिस नंबर का पावर 3 है, वही नंबर पर आपका इनका क्यूब कहलाएगा, उसी नंबर का क्यूब है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम कहें 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो क्योंकि हम 8 को किसी भी नंबर की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज वाई 8 क्या कहलाएगा, परफेक्ट क्यूब, पहली चीज। और किस नंबर का क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है, तो जिस नंबर को हमने पावर 3 के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 2 है, तो ये वो नंबर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे जानना चाहता है, क्लियर। नेक्स्ट इज 256। सो आई होप कि 256 भी आप इसी तरह वीडियो पॉज करके देख लोगे, कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, वेट अ मिनट। देखो बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स। क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन एंड क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑड। हर इवन नंबर का क्यूब इवन होगा और हर ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा। जैसे कि ऐसे समझो कि हमने लिखा 2 क्या है, इवन नंबर, तो 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। मैंने लिखा 3, तो 3 का क्यूब 3 क्या है, 3 इज एन ऑड नंबर। 2 तो इवन था, बट 3 क्या है, ऑड नंबर। और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर। तो आपने ऑब्जर्व किया कि क्योंकि 2 इवन नंबर है, इसलिए इसका जो क्यूब है वो भी एक इवन नंबर आया। 3 क्योंकि ऑड नंबर है, इसलिए इसका जो क्यूब है 27 वो भी एक ऑड नंबर आया। क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलो, अब अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आपके लिए बड़ा इजी हो गया सॉल्यूशन। आइए देखो कैसे। कहाँ गया, यस ये है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये एक इवन नंबर का क्यूब है, ठीक है, तो जो वैल्यू एज अ क्यूब लिखी हुई है वो भी एक इवन नंबर ही होगी, ठीक है। तो अब बस आपको करना क्या रह गया, मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके क्या कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि जस्ट हैव टू चेक कि वो इवन नंबर है या नहीं है। अब आपको इन क्वेश्चंस को ये पता करने के लिए इवन नंबर का क्यूब है या नहीं, ये रियली डोंट नीड टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको यहाँ इन क्वेश्चंस को करने के लिए पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं कि आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, फिर ये ट्रिपलेट बना रहे हो, ट्रिपलेट बना के चेक कर रहे हो कि सर ये है नहीं है, अच्छा ये परफेक्ट क्यूब बन गया तो ये है। दैट्स नॉट द वे। द वे इज कि अगर ये एक इवन नंबर है तो बेसिकली ये एक इवन नंबर का ही क्यूब है, क्लियर। अगर ये एक ऑड नंबर है तो ये एक ऑड नंबर का क्यूब है, अगर ये एक इवन नंबर तो एक इवन नंबर का क्यूब है, ठीक है। हाँ, देयर इज अ पॉइंट कि अगर इनमें से कोई क्यूब है ही नहीं
देन देयर इज अ सिचुएशन, बट यहाँ पे जितने भी दिए हुए बच्चों वो सारे के सारे क्यूब्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो वी नो दैट प्रॉपर्टी दैट द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन, वी नो दैट द प्रॉपर्टी दैट द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन। तो 216 हो गया, 512 हो गया और 1000 हो गया। दीज आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बीच में बोलना चाहता हूँ कि बच्चों अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है किसी भी लेक्चर में, सो ऑलमोस्ट ऑल द लेक्चर्स आर बीइंग अपलोडेड ऑन यूट्यूब, सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे ही अपलोड हो रहे हैं, तो उन लेक्चर्स को आप देखते समय ही तुरंत ही कमेंट में करके पूछ लिया करो अगर कोई डाउट हो तो। मोर ओवर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। फर्दर देखो अभी यहाँ पे ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स। अब आपको क्या करना है, अब ये थोड़ी ना है कि इसमें 125 और 343 और 1728 4096 और 9261 सबका क्यूब निकाल, सबका पता करोगे कि इसका क्यूब रूट क्या होता है। नो, यू शुड नॉट डू इट दिस वे। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू चेक कि कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, दैट्स इट। तो कौन सा ऑड नंबर है, 125, 243 एंड 9261। क्लियर हो गया। सो क्योंकि ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं तो डेफिनेटली ये किसी ना किसी ऑड नंबर्स के ही क्यूब होंगे। किसके होंगे ये हमारा बिजनेस नहीं, बस वो पूछा था कि क्यूब है या नहीं है। अच्छा ये देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या है इसमें, वर्ड प्रॉब्लम से हमारे स्टूडेंट्स घबराते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वर्ड प्रॉब्लम इनटू फोकस, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वर्ड प्रॉब्लम इनटू फोकस, ठीक है। Find the smallest number by which 1323 must be multiplied so that the product is a perfect cube. सब क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे हैं कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे कि 1323 को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। बच्चों ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे करना कैसे है, तो आप सबसे पहला वर्क जो करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछे या बिगेस्ट नंबर पूछे, मल्टीप्लाइड पूछे या डिवाइड पूछे, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। सो जब आपने यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन किया गिवन नंबर का, सो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आई होप कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको प्रोसेस करके यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। अच्छा अगर ज़रूरत होगी तो डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से आई टेक केयर कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन को बोल के समझा भी दूंगा। Now, this 1323 or 1323 can be written as 3 into 3 into 3 into 7 into 7, ठीक। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हुई कि हमने ट्रिपलेट बना लिया, वन ट्रिपलेट इज फॉर्म्ड, किसका, 3 का ट्रिपलेट बना लिया, बट 2 फैक्टर्स ऑफ 7 आर लेफ्ट, लेकिन 7 के 2 फैक्टर्स लेफ्ट है यानी बच गए, इनका तो ट्रिपलेट बन नहीं पाया। सो अगर हम लोग वी शुड मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाई 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। देखो अब अगर इसी में एक एक्स्ट्रा 7 आ जाता, भाई अभी तो हमारा केस ये है, लेकिन एक बात जरा से इमेजिन करो कि अगर इसी में एक एक्स्ट्रा 7 आ जाता एज अ मल्टीप्लाई, ठीक, तो क्या ये भी एक ट्रिपलेट नहीं बन जाता, क्या ये भी 7 का ग्रुप नहीं बन जाता, तो कहोगे सर बिल्कुल बन जाता है ना। हम कहते हैं इसको भाई ट्रिपलेट बनाने के लिए व्हाट यू नीड एन एक्स्ट्रा 7, जब 7 आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई आपका 7 का ग्रुप बन जाएगा, तो ये जो एक्स्ट्रा 7 चाहिए, ये 7 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बस इसी 7 का मल्टीप्लाई करना। और यही यहाँ पे देखो मैंने लिखा, वी शुड मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। आई होप इट्स डन। देखो मैंने यहाँ पे इसीलिए करके रखा है 1323 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्लियर, मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये आपको एक अच्छा खासा परफेक्ट क्यूब नजर आ रहा होगा विद नो एक्स्ट्रा फैक्टर्स। सिमिलरली इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू चेक कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब देखो सबसे पहला काम अभी भी वही है, क्या है कि 8788 का आप सबसे करोगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, और जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया सो यू गेट टू नो कि यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ना, 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। सो हियर यू फाइंड कि 13 का ट्रिपलेट बन गया यानी 3 का ग्रुप बना लिए, लेकिन 2 इंटू 2 हमारा बच गया, इसका तो अभी कुछ हो नहीं पाया। सो कह रहा है कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए,
वो छोटे से छोटा नंबर, जिससे कि कोशंट यानी जो न्यूमरेटर है वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। सो थिंक ऑफ अ सिचुएशन प्यारे बच्चों, जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि कि अगर यहाँ पे ये 2 बार 2 नहीं होता, आई जस्ट डिलीट इट, ओके। तो ये 13 इंटू 13 क्या बन रहा था, ट्रिपलेट बन रहा था ना। और 13 इंटू 13 ट्रिपलेट बन रहा था, 13 इंटू 13 ट्रिपलेट बन जा रहा था, एंड हैंस ये एक परफेक्ट क्यूब बना देता। यानी कि अगर हम इस 2 इंटू 2 को हटा दें, और हटाएंगे कैसे, अगर हम किसी 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाला 2 इंटू 2 न्यूमिनेटर वाले 2 इंटू 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर वाला 2 इंटू 2 मैं आपको और अच्छे से करके दिखाता हूँ। अगर हमने यहाँ पे देखो छोटा सा 2 बार लिख दिया 2, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी अगर हम 2/2 से 2 इंटू 2 से डिवाइड कर दें तो क्या पता चलेगा, ये पता चलेगा कि जो गिवन न्यूमरेटर है वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। एंड द सेम थिंग यू हैव टू डू, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप लोग के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, कि वी शुड डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2 इंटू 2, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये ध्यान रखना होगा। अच्छा ये ध्यान देना, वी शुड मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया था, वी शुड डिवाइड होगा, ठीक है। द गिवन नंबर बाय 2 इंटू 2, यानी कि 4 से हम लोगों को डिवाइड करना है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So students, this is your final answer and that's all for the day. I am sending you the PDF as well. PDF को प्रॉपर इसी के PDF को प्रॉपर सॉल्व करके मेरे को इसका सॉल्यूशन, मेरे को इसका आंसर अपना जो है कॉपी में, आंसर नहीं प्रॉपर नोट्स इसका कॉपी में लिख करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ठीक है। थैंक यू।